Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay and Charvi Vijay with me. Today we are starting with the easy concept paper number 1. आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किया तो मेरे साथ करेंगे और एक एक क्वेश्चन डिटेल में विद कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं. मेरी हेल्प करेगी चारवी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के लिए और सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर बोथ द थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन. आप सब जानते हैं इस टर्म 2 के पेपर में हमारे पास 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं. पार्ट ए में 9 और पार्ट बी में 3 क्वेश्चन. टोटल चॉइसेस रहेंगी 4. सभी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा. सो अब हैंड ओवर करता हूं चारवी को जो रीड करेंगी पहला क्वेश्चन और साथ साथ में मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा. सो ओवर टू यू चारवी. Let's go through the general instructions of the paper. There are two parts, part A and part B, and total there will be 12 questions and all of them are compulsory. So question number 1 to 3 and 10 are short answer type 1 questions and they carry 2 marks each. Question number 4 to 6 and 11 are short answer type 2 questions and they carry 3 marks each. Question number 7 to 9 and 12 are long answer type questions and they carry 5 marks each. So there is no overall choice, but there is an internal choice in 3 questions of 3 marks and 1 question of 5 marks. So moving on to the part A of the paper, which includes accounting for not-profit organizations, partnership firms and companies. So the first question says, briefly explain the statement, receipt and payment account is a summarized version of cash book. Let Vikas sir explain the answer to it. So thank you Charvi, and the first answer is receipts and payment account is prepared on the basis of cash receipts and cash payments as recorded in the cash book. It is merely a summary of cash and bank transactions under various heads. It includes all receipts and payments, whether revenue, capital, or whether related to current year, previous year or coming year. So this is the answer, but let me explain you in detail. What happens when we prepare a cash book? Say for example, if we have received the subscription 3 times, so what we will do, we will add all the 3 subscriptions into the receipts side. Similarly, on the payment side, if we are paying salary for the 12 months, so we'll club all the 12 months salary and we will show as a one salary single amount on the payment side. Same with the rent, same with the machinery purchase or the furniture purchase. If we have purchased 2-3 times in a year, they all will be clubbed and that's why they are shown in the receipt and payment account, and even for the current year, previous year and the next year. That's why we say that it is a summarized version of cash book. So here we have got the question paper and here we have got the answers. So side by side I'll be taking care of. Charvi is reading each and every single question in a beautiful way. She's bringing you the insights into each and every question and I will bring you the solution. And moreover, besides this video solution, I'll be providing you the PDF of this particular solution also. So need not worry, we have a complete solution for you. This is the amazing unique way to cover up the entire syllabus to assess your checking. I hope you will enjoy this effort of the Team Accounts Guru. So let's over to Charvi for the second question. Very well explained, sir. So let's move to the next question. Second question says, why is realization account prepared? Over to you, sir. Fine. So why realization account is prepared? The reason is it is prepared to find the profit or loss on realization of assets and making payment of liabilities. Profit or loss on realization is transferred to partners capital or their current account in their profit sharing ratio. यानी बनता क्यों है realization account? Just to sell off all the assets and the payment of liabilities. If something is left out, it is known as a profit or loss on realization. It is divided among the partners in their profit sharing ratio. Next question. Thanks for the wonderful explanation. Let's move on to the third question. Sanjay, Anuj and Karan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Anuj retires and sold his share for rupees 60,000 being paid as 40,000 by Sanjay and 20,000 by Karan. Calculate the new ratio of Sanjay and Karan. So let Vikas sir explain the solution to it. So in third question, there are 3 partners, Sanjay, Anuj and Karan, and the ratio is 3:2:1. Anuj got retired, that is the second partner, and he has sold his share for 60,000. Fine. And this 60,000 has been given by Sanjay 40,000 and 20,000 by the Karan. So what you have to understand, when a partner retires and sell his share, or if a partner dies and sell his share and 2 amounts are given, like one from Sanjay, other from the Karan. So these 2 amounts, if you see, these are the gaining ratio. So in this gaining ratio, you have to divide the share of Anuj, that is 2/6. You will get the gaining share. Once you get the gaining share, you can add in the old share and you will get the new profit sharing ratio. So here the concept was that 60,000 rupees was the total amount for which the Anuj has sold his share, और जिस अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया है बाकी दोनों पार्टनर्स ने, उन दोनों अमाउंट का जो रेशियो है दैट इज द गेनिंग रेशियो.
कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गेनिंग रेशियो को ऐड कर देते हैं ओल्ड में। ये गलत बात है। पहले आप रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर का जो शेयर है उसको डिवाइड करेंगे गेनिंग रेशियो में, एंड यू विल गेट द गेनिंग शेयर। वंस यू गेट द गेनिंग शेयर, तब आप उसको ओल्ड में ऐड करेंगे, तभी आपको आंसर आएगा न्यू। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन डिटेल में। सो नाउ हियर यू कैन सी the gaining ratio was 40,000 is to 20,000, that is 2 is to 1 is the gaining ratio, and the Anush share was 2 by 6. So what you will do, divide 2 by 6 in the ratio of 2 is to 1. So 2 by 6 into 2 by 3, 2 by 6 into 1 by 3, you get the gaining share. अब गेनिंग शेयर आगे करना क्या है, आपको ओल्ड में ऐड करना है, और ओल्ड था 3 by 6 and 1 by 6. So 3 by 6 plus 4 by 18, you get 13 by 18. 1 by 6 plus 2 by 18, you get 5 by 18, and the new ratio is what? 13 is to 5. So I hope it's clear. Now let's move to the next question, Charvi. Thank you, sir. Next question is, P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 3 is to 2 is to 1. R died on 30th September 2021. The profits earned during this period was estimated to be rupees 1,20,000. So first point says, pass necessary journal entry. In this question, PQ are the partners and ratio 3 to 1. R died on 30th September, that is he was alive for 6 months, and 6 months का प्रॉफिट गिवन है 1,20,000. तो R का शेयर है 1 by 6 of 120, हम आराम से निकालेंगे 20,000 प्रॉफिट। उसको एंट्री देनी है, बनानी है एंट्री। और यहाँ पे दो केस मैंने दिए हैं स्पेशली कि जब यहाँ पर न्यू रेशियो चेंज ना हो और जब न्यू रेशियो चेंज हो। वी ऑल नो जब न्यू रेशियो चेंज नहीं होता तब एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखेंगे क्या 20,000 से एंट्री बनी है, एंड यू विल से यस द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशियो चेंज होता है, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में इक्वल ले लिया, दैट इज 1:1 रेशियो ले लिया, तो अगर 1:1 है तो यहां हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और यहां देख रहे हैं गेनिंग रेशियो में पी का जो गेनिंग शेयर आया है वो 0 आया है, यानी सिर्फ क्यू ने ही गेन किया सारा का सारा आर से, तो सिर्फ यही कंपनसेट करेगा। सो व्हेन द रेशियो चेंजेस इट बिकम्स लाइक अ गुडविल क्वेश्चन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और यहां पर एंट्री बनेगी क्यू टू आर 20,000 रुपीज। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, बिकॉज मैंने स्पेशली बनाया क्वेश्चन बुक्स के लिए, तो यही सोच के बनाया कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आने चाहिए कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन, यानी रेशियो चेंज नहीं होता, तो डिजीज पार्टनर के शेयर की प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से होगी, और अगर रेशियो चेंज होता है फिर एंट्री बनेगी क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और किसके शेयर से, विद द डिजीज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो यहां पर है पार्टनर मरा है उसके प्रॉफिट शेयर से, यानी 20,000 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you for the explanation, sir. Next question says, calculate the amount of subscription which will be treated as income for the year ended 31st March 2021. So, subscription received during the year ended 31st March 2021 is given as 80,000. Subscription outstanding in the beginning of the year is rupees 25,000. Subscription not yet collected for the year ended 31st March is 18,000. And subscription for the year ended 31st March 2022 received in advance is rupees 12,000. So, let's see its answer. So, यहां पर क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है, हमें इनकम निकालना है, यानी कैश बेसिस से हमें जाना है एक्रूअल बेसिस पे, और देख सकते हैं यहां पर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव है 80,000, आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग ऑफ ईयर है 25,000 है, और यानी इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा 25,000 रिसीव हो चुका है, तो ये माइनस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर, यहां मेंशन है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, यानी दिस इज ओनली फॉर द करंट ईयर, ये ऐड हो जाएगा 18,000। एंड लास्ट में है कि हमने अगले साल के लिए एडवांस रिसीव किया 12,000, जो कि माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव जो मैंने बताया था 80,000, यस हमने लिया है। जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है कि वो सारा का सारा रिसीव हो गया, इफ नथिंग इज मेंशन, देयरफॉर हमने माइनस कर दिया। जो करंट ईयर के लिए था वो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर था, दिस इज ओनली फॉर द ईयर। सो एज पर द एक्रूअल बेसिस हम सर्विस दे चुके हैं, पैसा भी आना बाकी है, तो हमारी इनकम है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हमने पे किया है, इसकी सर्विस नेक्स्ट ईयर हमने देनी है, एडवांस मनी आ गया, वी हैव टू गिव सर्विस नेक्स्ट ईयर, ये माइनस हो जाएगा, एंड द आंसर इज 61,000। सो जस्ट चेक आउट, क्या आपका आंसर 61,000 आया? Very well explained, sir. And this question is one of the most asked question, and mostly students get doubt in this question, and so I feel everybody will be clear after hearing your explanation. Next, all part of the question says, distinguish between a not-for-profit organization and a profit organization on the basis of first, purpose, second, funds, third, financial statements. So let's hear the theory explanation of the same. एंड द और पार्ट यहां पर जो पूछा गया है, डिफरेंस बताना है हमें।
एनपीओ और एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, पहला है पर्पस के बेस पे। तो पर्पस में यहां है इसका सर्विस मोटिव होता है और यहां इसका प्रॉफिट मोटिव है। सेकंड बेसिस है फंड्स, यहां पर फंड जो है वो मेंबर्स लेके आते हैं थ्रू सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स या फिर अगर कंपनी है तो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके हम लोग फंड्स मंगाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां बनती है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, यहां बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और कंपनीज के केस में इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सो दिस इज व्हाट इज अ 3 मार्क का ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि चॉइस में थ्योरी भी आ सकती है ताकि पेपर के लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट बनाया जाए और बच्चे आराम से कर पाएं। तो बच्चे थ्योरी भी जरूर पढ़ के जाइएगा। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ, चार्वी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो पहला वाला पार्ट था कि नॉर्मली बच्चे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी बच्चों को ये बहुत क्लियरली आपने बताना है कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड या एज ऑन 31 मार्च गिवन है तो इसके अंदर पिछले साल का जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूडेड होता है, उसको माइनस करना पड़ता है। बस ये नॉलेज चाहिए। और अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर गिवन है तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का होता है, जैसा हमने ऐड किया था। फाइन, तो ये दोनों पार्ट मैंने करा दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। So moving on to the sixth question. Roopnarayan Limited took over assets of rupees 7 lakh and liabilities of rupees 2 lakh from Krishna Limited for a purchase consideration of rupees 4 lakh 59,500 rupees. Rupees 8,500 were paid through a bank draft of 3 months and balance by the issue of 12% debentures of rupees 100 each at 10% premium. So pass necessary journal entries for the above transactions. Let's see his answer by Vikas sir. So, यहां पर ये क्वेश्चन है जहां पे हमने एसेट्स भी लिए हैं, लाइबिलिटीज भी लिए हैं और परचेज कंसिडरेशन में गिवन है। तो आप देख सकते हैं जो परचेज कंसिडरेशन और जो लाइबिलिटीज हमने लिए है वो एसेट्स की वैल्यू से कम है, तो जो बैलेंस होगा वो हमारा कैपिटल गेन है, कैपिटल प्रॉफिट है, वो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद 8500 हमने पे किया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो वेंडर टू बैंक हो जाएगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 459,500 माइनस 8500 यानी 4,51,000 डिवाइड करना है उसको 110 से, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 4100। एंट्री क्या बनेगी चले देखते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं सन्ड्री एसेट्स 7 लाख के हैं, लाइबिलिटीज हमने 2 लाख के लिए है, और जो कृष्णा लिमिटेड है वेंडर वो है 4,59,500, डिफरेंस 40,500 वो हमारा कैपिटल गेन कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया है। और इस 4,59,500 में से हमने 8,500 पे किए हैं बैंक ड्राफ्ट। आप चाहें तो इसकी सेपरेट एंट्री बना सकते हैं या फिर क्लब, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है वो है 4,51,000, उसको डिवाइड करेंगे 110 से, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे आ गए 4100। तो यहां पर डिबेंचर्स में हम लिखेंगे 4100 इंटू 100 4,10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे हम लोग 4100 इंटू 10 41,000। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और ये हम आपको शेयर चैप्टर में भी करा चुके हैं कि अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो वो गुडविल होता है और क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व, ये हमें समझ आ गया। और इस 4,59,500 में से हमने माइनस किया 8,500, तो 4,51,000 हमें बच गया था, उसको डिवाइड करना है 110 से, तो डिबेंचर्स आ गए 4,100। तो यहां पर डिबेंचर्स के अंदर भी 4,100 इंटू 100 रुपीज लेंगे और प्रीमियम के अंदर 4,100 इंटू 10, और ये अमाउंट आ गया 4,10,000 और 41,000 इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Very well explained sir, and this is a very difficult point for every student and me also sharing my experience for the same. It's a difficult point to calculate the number of debentures issued to the vendor. So I hope now it's clear to all of you. Next, moving on to the or part of the same question, which says Accounts Guru Limited issues 7,500 11% debentures of rupees 100 each at a premium of 50%. The whole of the amount was payable on application. Applications for 20,000 11% debentures were received and applications for 5,000 debentures were rejected, and debentures were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Pass necessary journal entries for the above transactions. So let's see the solution by Vikas sir. सो नाउ यहां पर और पार्ट में हमारे पास एप्लीकेशन आई है 20,000 डिवेंचर्स की, कंपनी ने इशू करने 7,500 डिवेंचर्स, यानी 12,500 की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं। आपको बताना चाहूंगा यहाँ लमसम है और लमसम में यहाँ पर प्रो राटा लिखा है कि प्रो राटा नहीं होता। तो इस 12,500 को पहले आप अलग से लिखिए और लिखिए कितना पैसा वापस करेंगे जितना मनी रिसीव किया है। यहाँ हमने 100 के बदले 50% प्रीमियम 150 रुपीज रिसीव किया तो 150 वापस करेंगे। अगर रिसीव किया तो डिस्काउंट पे 90 रुपीज तो 90 वापस करते। तो पहला पॉइंट आप जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ रिफंड होगा जो भी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव है, प्रोराटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लमसम है। तो यहाँ पर
पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20,000 से बनेगी, और जब ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ 7,500 डिबेंचर्स का ही मनी ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में, और 7,500 डिबेंचर्स का ही मनी ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, बाकी वापस करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहां देख सकते हैं आप 20,000 डिबेंचर्स हैं और 150 रुपीज आया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो गया 30 लाख। इसके अंदर से हमें डिबेंचर्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करने हैं जितने हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं, 7,500 इंटू 100। प्रीमियम हमारा 50 रुपए है, यानी 50%, 7,500 इंटू 50 यानी 3,75,000, बिकॉज 7,50,000 का हाफ हो गया 375। अब जैसा मैंने बताया 12,500 डिबेंचर्स एक्स्ट्रा है, 12,500, और पूरा 150 रुपीज। यहां ये दिक्कत आती है बच्चों को, हम कितना वापस करें, तो प्लीज लिख लीजिए जितना मनी आपने एप्लीकेशन के साथ रिसीव किया है। अगर प्रीमियम के साथ रिसीव किया तो यू हैव टू रिफंड विद प्रीमियम, अगर आपने डिस्काउंट के साथ लिया तो डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। फाइन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So I hope the explanation was clear to you. And one more thing जो आपको दिमाग में रखनी है, that whenever there is oversubscription as well as lump sum, there is no pro rata and all of the amount is refunded. And so don't get confused. And this line is only given to scratch your brain. I hope the solution is clear to you. Moving on to the next question. From the following receipts and payments account of Rotary Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on the date. So let's go through the table given of receipts and payments account. On the receipt sides given is to balance BD 1,20,000 rupees, to donations 15,000, to subscription 2,30,000, to entry fees 40,000, to interest on investments 13,000, to sale of old newspaper 4,000, and to sale of match tickets 12,300. Given on the payment sides are by salary 1,32,000, by repair expenses 8,000, by sports equipment 75,000, by match expenses 32,000, by expenses on teams 80,000, by insurance premium 88,200, by miscellaneous expenses 12,500, and by balance CD 86,600. So after this table, let's read the additional information given below. First point says half of the donation received is for the construction of tennis court. Second, subscription in arrears for the year ended 31st March 2021 and 2020 are rupees 32,000 and 28,000 respectively. Subscription in advance for the next year received during the year is rupees 12,000. Insurance premium is paid for 6 months in advance in the beginning and at the end of the year. On 1st April 2020, the club owns the following assets: building as rupees 1,30,000, sports equipments 1,40,000, and investment of rupees 80,000. The club has a match fund of rupees 30,000 as well. So let's see the explanation for this question. तो बच्चों सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब एक एक बात बताऊंगा, उसको आपको नोट करना है, फिर हम मूव करेंगे डिटेल सॉल्यूशन की तरफ से। सबसे पहले यहां पर दोनों चीजें बनानी है, एक तो रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर और फिर बैलेंस शीट भी हो। जब बात बैलेंस शीट की आती है तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनेगी, क्लियर है। यहां पर सबसे पहले मार्क कर लीजिए कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रेवेन्यू और कैपिटल को डिस्टिंग्विश कर लीजिए, और जो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश है वो तो बैलेंस शीट में जाता है। तो यहां पर डोनेशन मेरी इनकम है, सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, एंट्रेंस फी मेरी इनकम होती है, इंटरेस्ट मेरा इनकम होता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम होती है। लेकिन जो सेल ऑफ मैच टिकट है इसको देखना पड़ेगा कि इसको इनकम माने या ना माने। अगर कुछ भी नीचे जिसमें नहीं गिवन होता तो मैं इसको इनकम मान लेता, बट यहां पर नीचे क्वेश्चन में मेंशन है द क्लब हैज अ मैच फंड ऑफ 30,000। इस फंड की वजह से ये फंड ओपनिंग में भी जाएगा, क्लोजिंग में भी जाएगा, और क्योंकि स्पेशल फंड है तो ये जो सेल ऑफ टिकट है 12,300 ये अपने ही फंड में ऐड हो जाएगा, इनकम में नहीं जाएगा। नोट कर लीजिए। सिमिलरली जो इसका एक्सपेंसेस गिवन है यहां पर मैच एक्सपेंसेस, ये मैच एक्सपेंस भी आपका इसी फंड में से माइनस हो जाएगा, यानी ये दो आइटम आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। फाइन। दूसरी बात करते हैं डोनेशन की। जो 15,000 डोनेशन है, यहां डोनेशन मेंशन कर रखा है कि हाफ डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, यानी यहां भी एक स्पेशल पर्पस की डोनेशन आई है, वो इनकम में नहीं आएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी। तो आप इनकम में कितना शो करेंगे? 15,000 माइनस 7,500, बाकी का अमाउंट आप इनकम में दिखाएंगे और बाकी आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अलग से हेडिंग। रेस्ट देखते हैं। यहां पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है 75,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। हमारे पास ओपनिंग में भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है नीचे 1,40,000 का, और क्लोजिंग में 140 प्लस ये 75 जाके चला जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन होता तो टोटल पे लगता।
नाउ सैलरी एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बता ही दिया, एक्सपेंस ऑन टीम एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट डोनेशन की हो चुकी है। सेकंड, सब्सक्रिप्शन जो एरियर है लास्ट ईयर का वो है 32। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना आया है। जब भी नहीं मेंशन हो पिछले साल में से कितना रिसीव है या कितना रिसीव नहीं है, हम मानते हैं सारा रिसीव हो गया, तो इसको इस इनकम 230 में से 32 को माइनस करना है। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 28, वो प्लस हो जाएगा बिकॉज पूरा का पूरा करंट ईयर का है, कुछ भी इसके अंदर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नहीं इंक्लूडेड है। एंड लास्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर इज 12,000। अगले साल का हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, यानी ये नेक्स्ट ईयर का हमारी इनकम नहीं है। तो कुल मिला के इस सब्सक्रिप्शन में माइनस होगा 32, प्लस होगा 28 और माइनस होगा 12,000। सॉल्यूशन में देखेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है कि हमने 6 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पे कर रखा है, तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 8200 है। 6 मंथ्स का करेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए 4100। ये बिगनिंग में भी एडवांस रहता है, साल के एंड में भी रहता है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 41 ऐड होगा माइनस होगा, सेम अमाउंट रहेगी 8200। बट ये दोनों प्रीपेड, ओपनिंग वाला ओपनिंग में एसेट जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के एसेट में जाएगा। ऑन 1 अप्रैल यानी साल के स्टार्टिंग में बिल्डिंग 130 है, ये ओपनिंग में भी जाएगा एसेट में, क्लोजिंग में भी, बिकॉज ये कैपिटल एसेट है, बड़ा एसेट है, फिक्स एसेट है। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 140 जाएगा और साथ में यहां पे जो परचेज किया 75 वो ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स 80 यहां भी आएगी और क्लोजिंग में भी आएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब इसका डिटेल सॉल्यूशन, और आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए आपका ये सॉल्यूशन आंसर। सो जो मैंने आपसे बातें करी हैं वो सारी की सारी यहां पर हैं। डोनेशन में से मैंने हाफ ट्रांसफर कर दिया टेनिस कोर्ट में, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे नीचे आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने ऐड कर दिया 32 लेस आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग एंड लेस एडवांस, तो हमारा 2,22,000 आ गया। बाकी तीनों चीजों में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। एक्सपेंस की बात करते हैं पहले। सबसे पहले सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिपेयर, एक्सपेंस ऑन टीम। बट जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वहां पर 6 मंथ्स का प्रीपेड था बिगिनिंग एंड में, तो प्लस माइनस करके आंसर सेम आ गया। मिसलेनियस एक्सपेंस एंड दिस इज द सरप्लस 45,800, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बट कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो यहां पर नहीं लिखा। तो आपको खुद समझना है कि जब बैलेंस शीट मांगी है तो वो दोनों बैलेंस शीट बनेगी। अगर हम कैपिटल फंड आपको पहले से दे दें एग्जाम में तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा, पुराना कैश एट बैंक जो 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन थे। उसके अलावा अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये दो आइटम आपको अलग अलग पॉइंट में गिवन था। जैसे सब्सक्रिप्शन एरिया लास्ट ईयर का 28,000 वो अलग पॉइंट में था। आपने इंश्योरेंस का देखा 6 मंथ्स का एडवांस है बिगिनिंग और एंड में, वो आपने अलग से एडजस्टमेंट देखा। तो थर्ड पॉइंट में सिर्फ ये 3 एसेट थे, पहले 3 कैश एट बैंक आपको बता ही दिया, और ये 2 आइटम हमारी थी अलग से। लायबिलिटी साइड में मैच फंड आएगा जो साल के स्टार्टिंग में 30,000 अवेलेबल था वो आएगा, और बैलेंसिंग फिगर करके कैपिटल फंड आ गया 4,72,000। एक बार कैपिटल फंड आ गया, इसके अंदर सरप्लस ऐड करेंगे आप कहां, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये रही आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहां पर बिल्डिंग सेम रहेगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्लस हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज, इन्वेस्टमेंट सेम है, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस 4100 है, सब्सक्रिप्शन एरियर इस साल का 32 और कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस 86,600, टोटल आ गया 5,47,700। लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमें निकाल लिया ओपनिंग बैलेंस शीट से, ऐड सरप्लस। उसके बाद आया 517,900, मैच फंड गिवन था हमें, ऐड कर दिया जो टिकट्स बेची, माइनस मैच एक्सपेंस 32,000, आंसर आ गया 10,300। टेनिस कोर्ट जो हमने ऊपर से माइनस करके लाए थे वो हमने अमाउंट डाल दिया यहाँ लायबिलिटी साइड पे, एंड सब्सक्रिप्शन जो एडवांस अगले साल की आई है वो, और 5,47,700 हमारा आंसर टैली कर गया। इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वार्म अप एक्सरसाइज। अगर आप ये टैली कर लिया, आपके बोर्ड में 40 में से 40 कोई नहीं रुक सकता इस टर्म 2 के एग्जाम के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आई होप आपको अच्छा लगा। जिसकी करेक्शन है प्लीज करेक्शन मार्क कर लीजिए डिफरेंट कलर से, और एक नोटबुक में हर पेपर की मिस्टेक आप लिखते रहेंगे, या तो हर पेपर के बाद एक शीट अटैच कर लीजिए और लिखते रहिए माई ओन मिस्टेक। एग्जाम में जाने से पहले इन मिस्टेक्स को दोबारा देखिएगा। हो सकता है सब्सक्रिप्शन गलत हो गया हो सकता है आपका स्पेशल फंड गलत हो गया मैच टिकट वाला पॉइंट गलत हो गया हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस वाला पॉइंट गलत हो गया, कोई भी, प्लीज पेन डाउन ऑल योर मिस्टेक। तो प्लीज इसको करने के बाद आई कैन एश्योर यू कि आपका एनपीओ का बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से कवर हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I hope the explanation was thorough and you got the answer. The only point you have to remember in this question is that whenever balance sheet is asked, you have to prepare opening balance sheet as well. Moving on to the next question. Brian Educational Services, a limited company providing its educational services in North India, seeing its growth and success, it decided to expand in other parts of India too, especially South India.
So this would involve huge expenditure for which the directors decided to issue rupees 40 lakh 14% debentures of rupees 100 each at par to be redeemed at 5% premium after 6 years. It has a balance of rupees 60,000 in securities premium reserve and a balance of rupees 1,20,000 in the capital reserve as well. So answer the following questions on the basis of the above information. First point says, state the amount of application money received. Second, what amount will be debited to loss on issue of debentures account. Third, calculate the amount of annual fixed obligation associated with debentures. Fourth, state the amount of loss on issue of debentures to be written off or out of statement of profit and loss. Last point says, pass necessary journal entry for writing of loss on issue of debentures accounts. So let Vikas sir explain the solution for the same. Now in this question 5 क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऊपर का पैराग्राफ पढ़ेंगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर, और उनका 3 टाइम्स टाइम वेस्ट हो जाता है, 3 गुना टाइम वेस्ट होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है। अब आप सबको जानते हैं अप्लाइड शेयर या अप्लाइड डिबेंचर्स इनटू एप्लीकेशन मनी लेते हैं। प्रीमियम है तो ऐड हो जाएगा प्रीमियम, उसके अंदर डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट सिर्फ डिबेंचर्स में होता है, शेयर्स में नहीं होता। तो यहां पर एप्लीकेशन मनी देखना है और वो यहां पे है 40 लाख रुपीज। यहां रुपीज का सिंबल है, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं गिवन, रुपीज का सिंबल है 40 लाख। तो 40 लाख वो भी पार पे इशू है, तो सीधा सीधा एप्लीकेशन मनी मेरा कितना होगा, रुपीज 40 लाख। पहली बार में ही आंसर निकल गया। दूसरा, कितना अमाउंट लॉस में डेबिट होगा, वो है रिडीम एट प्रीमियम 5%, यानी 5% पे रिडीम करना है हमें फ्यूचर में। तो 5% ऑफ 40 लाख इज 2 लाख। तो दूसरे का आंसर भी बातों बातों में हो गया, 2 लाख हमारा लॉस है। थर्ड, हमारी फिक्स ऑब्लिगेशन कितनी है, एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन को बोले तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो कितना है 14%। आप 14% निकाल लीजिए 40 लाख रुपीस का, और वो आ रहा है 5,60,000। 5,60,000 इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और स्टेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू टू बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ एसओपीएल, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सबसे लास्ट में यूज होगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 60,000, you have a capital reserve 1,20,000. So 120 plus 60 180 आपके पास पहले से प्रॉफिट है। जो टोटल लॉस है वो 2 लाख रुपीस का है, यानी 2 लाख का लॉस ऑन इशू है। तो 2 लाख में से 180 तो यहां से जा रहे हैं, बाकी कितना बचा 20,000, वो जाएगा एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अभी एंट्री के थ्रू बताएंगे, और लास्ट में वही एंट्री मांगी है, पास द जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू डिबेंचर। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसके साथ करा दिए। देखते हैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन। देखिए, तो यहां पर वो आंसर है, पहले 4 आंसर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और 5वां आंसर मैंने बताया था एंट्री के थ्रू बताना है, और वो एंट्री ये रही, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एसओपीएल टू लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर। ये हमारा पूरा 2 लाख राइट ऑफ हो गया। एंड दिस इज द आंसर नंबर 8। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। Moving on to the next question, which is on the topic of retirement of a partner. Balance sheet of Vedanta, Vijay and Vikas, who were sharing profits in the ratio of 5:3:2, is given below as on March 31, 2021. So, liabilities and assets will read out. Capital of the 3 partners are given as Vedanta's of 7,20,000, Vijay 4,15,000 and Vikas 3,45,000. Reserve fund as 1,80,000, sundry creditors as 1,24,000 and outstanding expenses of 26,000. Now let's move on to the asset side. Land is given of 4 lakh, building 3,80,000, plant and machinery 4,65,000, furniture and fittings 77,000, stock of 1,85,000, sundry debtors of 1,72,000 and cash in hand as rupees 1,31,000. So let's read the following adjustments. The adjustments are as Vijay retires on the above date and following adjustments are agreed upon as retirement. First, stock was valued as rupees 1,72,000. Furniture and fittings were valued as rupees 80,000. An amount of 10,000 rupees due from Mr. Pandey, a debtor, was doubtful and a provision for the same was required. Fourth, goodwill of the firm was valued as rupees 2 lakh. Fifth, Vijay was paid 40,000 immediately on retirement and the balance was transferred to his loan account. Lastly, Vedanta and Vikas were to share future profits in the ratio of 3:2. So, you are required to prepare a revaluation account, capital accounts and balance sheet of the reconstituted firm. So, let Vikas sir explain the solution for the same. So next हमारा है 9th क्वेश्चन, और जो ये फर्स्ट पार्ट है ये है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जहां 3 पार्टनर है, वेदांत, विजय एंड विकास।
रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो यहाँ है इनका 3:2, सो न्यू भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है। व्हाट विल डू 3/5 - 5/10, 2/5 - 2/10, और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, यहाँ गेनिंग रेशियो आपका आएगा 1:2। करना क्या है, यूज क्या है गेनिंग रेशियो का, यहाँ जो गुडविल गिवन है हमारी फर्म की 2 लाख जो वैल्यूड होती है वो फर्म की होती है, फर्म में से जो 3/10 है वो निकालेंगे तो हमारा आएगा 60,000, उस 60,000 को बांटेंगे 1:2 में, तो क्या रहेगा अमाउंट 20,000 एंड 40,000। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, विजय क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज उसको गुडविल मिलनी है, और बाकी के दो पार्टनर्स वेदांत और विकास डेबिट हो जाएंगे। तो जो डेबिट है उनके डेबिट साइड पे एंट्री आएगी टू विजय करके, विजय क्रेडिट है उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी बाय वेदांत तो बाय विकास करके। अभी मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा डिटेल में, अभी आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सारे एसेट्स गिवन है, ये सारी लायबिलिटीज है, और सबसे पहली बात मैं कहता हूँ रिजर्व फंड। इन आइटम को मत भूलना बिकॉज ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो बाकी के पार्टनर्स है तीनों उनमें ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में डिवाइड होगा। सो गुडविल के बाद देखते हैं बाकी क्या है एडजस्टमेंट्स। स्टॉक यहाँ पे वैल्यू है 1,72,000 का, पहले था वो हमारा 1,85,000, तो 13,000 से गिरा है, रिवेल के डेबिट पे आएगा। फर्नीचर फिटिंग हमारी हो गई है 80,000 की, और पहले थी हमारी फर्नीचर 77,000 की, 3,000 से बढ़ गई है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। 10,000 रुपये हमें मिस्टर पांडे से, जो डेटर है हमारा डाउटफुल है और लग रहा है कि पैसे नहीं आएंगे, प्रोविजन क्रिएट करना है, अगेन ये रिवेल के डेबिट साइड पे आएगा। गुडविल का 4th पॉइंट हम कर चुके हैं। 5th है हमारा विजय वॉज पेड 40,000 इमीडिएटली, तो इसकी एंट्री बनेगी विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी पेमेंट आएगी डेबिट साइड पे विजय के, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो जाएगा उसके लोन अकाउंट में, और यहाँ पर न्यू रेशियो गिवन है 3:2। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, मेन बात। अब देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन, और अपने सॉल्यूशन से मैच कीजिए क्या है आपका आंसर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, स्टॉक डिक्रीज हुआ था 13 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो टोटल हुआ 23, वहां पर 3, लॉस हमारा आ गया 20,000 का। ये 5:3:2 में बांट देंगे पार्टनर्स के, और ये लॉस चले जाएगा पार्टनर्स के डेबिट साइड पे। और आइटम क्या आएगी, पहले बाय बैलेंस बीडी का ओपनिंग कैपिटल रिजर्व फंड जो लायबिलिटी साइड पे गिवन था ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, और जो गुडविल की एंट्री थी वो हमने पास कर दी है 2040 से दोनों तरफ, 40,000 हमने पे कर दिया। अब जो विजय है उसका टोटल है 5,29,000, और यहाँ पर है 4,83,000, 5,29,000 माइनस 483, बाकी का बैलेंसिंग फिगर डाल दिया उसके लोन अकाउंट में। और अब वेदांत का बैलेंसिंग फिगर है 780, और विजय विकास का है 3,37,000, ये दोनों जाएंगे न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो 3 चीजें लायबिलिटी साइड पे जाएंगी, एक लोन और बाकी का जो 780 एंड 3,37,000, ये तीनों लायबिलिटी साइड पे मेंशन होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो यहाँ हम देखेंगे सारे बैलेंस शीट में जो एसेट्स गिवन है वो सेम वैल्यू पे है, जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ। जिसपे चेंज हुआ वो फर्नीचर था, स्टॉक था, वो न्यू वैल्यू पे रिवाइज वैल्यू पे आ गया है। डेटर्स में से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना था, और जो 40,000 पे किए हमने वो कैश या बैंक बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। देन लायबिलिटी साइड पे देखेंगे विजय का लोन आएगा, जो हमने बैलेंसिंग फिगर 40,000 पे करने के बाद बैलेंस बचा था वो क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एंड ये है पार्टनर्स के फाइनल बैलेंसेस जो टू बैलेंस सीडी में आ रहे थे। तो ये है हमारा पार्ट ए। और पार्ट में देखते हैं वो रहेगा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। Wonderfully explained, sir. And this is the only question of 5 marks where you have a choice between the two. And given the CBSE sample paper, the choice will mostly come in the question of retirement and dissolution. So what you are expected to do is read both of these questions and attempt the one which will give you maximum marks in less time. Reading the option of the same question which says Krish and Kunal sharing profits in 3:1 and they agreed upon dissolution. The balance sheet as on March 31, 2021 is as under. The liabilities says loan of rupees 12,000, creditors 18,000, capitals of Krish as 1,10,000 and Kunal's as 70,000. Coming on to the assets. Assets of the balance sheet says as cash at bank rupees 27,000, stock 45,000, furniture rupees 16,000, debtors 70,000, plant and machinery 52,000. So let's read the Krish took over plant and machinery at an agreed value of rupees 60,000. Stock and furniture were sold for rupees 42,000 and 13,900 respectively. Debtors were taken over by Kunal at rupees 69,000. Creditors were paid subject to discount of rupees 900 and Krish agreed to pay the loans. Realization expenses were rupees 1,600. Prepare realization account, partners capital account and bank account. So let's understand the solution of the same and then it's up to you whatever question you want to attempt in the paper. So now ये क्वेश्चन है हमारा और पार्ट में डिसोल्यूशन का। क्रिश और कुणाल पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1 और यहाँ पर फॉर्म डिसॉल्व हुई है। ये सारे एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज है और नीचे एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करते हैं,
ऑल दोस एसेट्स विच आर सेलेबल, जो कि हम बेच सकते हैं, तो ये चारों के चारों एसेट अपनी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। लोन और क्रेडिटर्स ये दोनों के दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे क्लोज हो जाएंगे, और ये लोन जो है एक्सटर्नल लोन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है एज अ बैंक लोन, कोई पार्टनर्स लोन नहीं है। पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। यहां पर क्रिश ले गया प्लांट मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000, तो एंट्री है क्रिश टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आएगी। स्टॉक और फर्नीचर को हमने बेच दिया है, ये दोनों वैल्यू बाय बैंक या बाय कैश के नाम से आएंगी। डेटर्स को कुणाल ले गया, उसकी एंट्री बनेगी कुणाल टू रियलाइजेशन, तो बाय कुणाल रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स वर पेड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 900, तो क्रेडिटर में से 900 माइनस कर देंगे, बाकी का अमाउंट हम पे कर देंगे। और क्रिश ने कहा कि ये लोन मैं पे करूंगा 12,000 का, इसकी एंट्री रिलेशन टू क्रिश, यानी फर्म की लायबिलिटी अब पार्टनर ने पे कर दी, तो पार्टनर फर्म का क्रेडिटर बन गया, एंट्री बनेगी रिलेशन टू क्रिश। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 1600 है, कुछ नहीं मेंशन, तो बॉर्न और पेड फर्म ने किए, तो रिलेशन टू कैश हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो यहां हम देख सकते हैं सॉल्यूशन है रिलेशन अकाउंट का। सबसे पहले हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए हैं, चारों एसेट्स, यहां 2 लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, और जैसा मैंने बताया था क्रिश ले गया था प्लांट मशीनरी बाय क्रिश, बाय कुणाल डेटर्स के लिए, बाय बैंक सेल ऑफ एसेट्स के लिए। डेबिट साइड पे देखते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स को पे किया गया है, लोन को पे किया गया है, रिलेशन एक्सपेंसेस है, और ये हमारा प्रॉफिट आ गया जिसको हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नीचे नहीं मेंशन, तो वो हमेशा पे होंगी बुक वैल्यू पे। तो यहां देखिए, यहां पर क्रेडिटर्स को लिखा था 900 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो वट एवर क्रेडिटर्स वर देयर 18,000, हमने उसको माइनस करके नेट अमाउंट पे किया है। अगर यहां नीचे क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम फुल अमाउंट पे करते। ये याद रखिएगा, जितना भी बुक वैल्यू है लायबिलिटीज का वो पे करते हैं, द क्वेश्चन इज साइलेंट। बट अगर एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं गिवन तो उसको मानते हैं 0, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। सो नाउ यहां पर पार्टनर्स कैपिटल है हमारा 1,10,000 और 70,000। यहां पर हमने जो लोन कृष्ण ने पे किया था वो ट्रांसफर किया 12,000 और प्रॉफिट 900 300। डेबिट साइड पे देखते हैं, यहां पर टू रिलायजेशन प्लांट मशीनरी कृष्ण ले गया था, डेटर्स जो है कुणाल ले गया 69,000 पे, और बैलेंसिंग फिगर आ गया 62,900 एंड 1,300, यानी ये दोनों पेमेंट कैश बुक के क्रेडिट साइड पे जाएंगी। तो अब लास्ट में कैश अकाउंट टैली करना बहुत जरूरी होता है, यानी ये अगर टैली कर गया तो ये बैलेंस शीट की तरह होता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं कैश अकाउंट। सो अब देखते हैं हमारा कैश अकाउंट लास्ट में। कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है हमारा 27,000, एसेट से रिलाइज हुआ 55,900, और पेमेंट साइड पे क्रेडिटर्स को पे किया 17,100, एक्सपेंसेस पे करे 1,600, और क्रिश और कुणाल को जो पेमेंट किया 62,900 एंड 1,300, उसके बाद टोटल आ गया 82,900, और ये हमारा टैली करता है डिसोल्यूशन, यानी 5 मार्क्स का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो चॉइस में है। ये दोनों हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जहां पर 3 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। So now moving on to the part B of the paper, where you have to attempt questions related to analysis of financial statements, and here you are given 3 questions in total. First says, state whether the following transactions will result in inflow, outflow or no flow of cash while preparing cash flow statement. First part says decrease in rent outstanding by rupees 6,000, and second decrease in current investment by rupees 4,500. So let Vikas sir explain the solution to this. So now ये है हमारा पार्ट बी, और यहां पर लिखा है पहली आइटम डिक्रीज इन रेंट आउटस्टैंडिंग 6,000, यानी एक करंट लायबिलिटी थी जो कम हो गई है, यानी हमने पे ऑफ कर दी है, इसलिए आउटफ्लो ऑफ कैश रहेगा। डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट बाय 45, करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट के अंदर कोई भी इंक्रीज डिक्रीज हो उसको हम नो फ्लो मानते हैं, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट। तो कभी भी कोई भी कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज डिक्रीज हो उसको हम मानते हैं नो फ्लो, तो ये रहेगा नो फ्लो। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, वो है हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आइटम है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट, और ये आइटम हमें दे रखी है। सबसे पहले हम 1920 लेंगे, उसके बाद लेंगे 2021, और उसके बाद लेंगे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, ऐड अदर इनकम, टोटल इनकम, माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, माइनस फाइनेंस कॉस्ट, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और टैक्स माइनस करेंगे आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन ये आपके सामने रहा। यहां पर हमने रेवेन्यू ले लिया, ऐड किया अदर इनकम, टोटल इनकम आ गया, टोटल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, और फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस करके हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद टैक्स माइनस किया, और ये आपके सामने आंसर है। परसेंटेज हमारे पास कैसे लेंगे कॉमन साइज में? हमेशा जब भी इनकम स्टेटमेंट में कॉमन साइज निकालना हो तो याद रखिएगा हम रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को बेस मानते हैं, ना कि टोटल रेवेन्यू। कई बच्चे गलती करते हैं कि वो 1,75,000 ले रहे हैं, बेस गलत है। बेस कभी भी टोटल को नहीं लेना, याद रखिएगा बेस हमेशा लेंगे हम रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को। तो हर आइटम चाहे वो 25/1,50,000 हो, 70/1,50,000 हो, 5/150 हो, हर एक में हम 150 बेस लेंगे, और यहां पर 2 लाख। तो प्लीज लिख लीजिए कॉमन साइज इनकम के अंदर, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉमन साइज इनकम के अंदर किसको बेस मानते हैं, टोटल रेवेन्यू को या रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन? तो सिर्फ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को। तो ये रहा आपके सामने आंसर पूरा परसेंटेज निकाल के
एंड आप आराम से कर सकते हैं और चेक कीजिए कहीं आपने परसेंटेज में कोई गलती तो नहीं की। चलिए देखते हैं और पार्ट। तो यहां और पार्ट में हम देख पा रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो बिल्कुल सिंपल है, 2020 को हम पहले लिखेंगे और 21 को बाद में, सारे एसेट्स लायबिलिटीज कॉपी कर देंगे और यहां पर बेस लेंगे किसको, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, यानी 50 लाख प्रीवियस ईयर, 60 लाख करंट ईयर। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहां हम देख सकते हैं, यहां हमारे पास है सारे लायबिलिटीज, सारे एसेट्स, और यहां बेस मानना है हमें 50 लाख को, यानी 30 लाख अपॉन 50 लाख इन 200 हमारा आएगा 60%, 4 लाख अपॉन 50 लाख 8%। इसी तरह से सारे यहां पर करंट ईयर में भी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को बेस मानना है। इसी तरह से हम एसेट साइड में करेंगे तो दोनों के परसेंटेज आराम से निकल जाएंगे। दिस इज द कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो कॉमन साइज इनकम में रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को बेस मानना है और कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर टोटल ऑफ द बैलेंस शीट एंड टोटल ऑफ द एसेट, टोटल ऑफ द लायबिलिटी को बेस मानना है। यहां भी 30 अपॉन 50, 6 लाख अपॉन 50, 10 लाख अपॉन 50 200, इसी तरह से दोनों की परसेंटेज आ जाएंगी। तो ये थे दोनों कॉमन साइज कंपैरेटिव। चलिए चारवी, अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, पढ़िए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। Very well explained, sir. Moving on to the last question of the paper, which is of 5 marks. Reading out from the following balance sheet of GPL Industries Limited as on 31st March 2021 and 2020, prepare cash flow statement as per Accounting Standards 3 revised. So, the balance sheet is given as follows. Equity and liability states shareholders funds, where equity share capital is given, reserves and surplus are given. In non-current liabilities, long-term borrowings is given. In current liabilities, short-term borrowings, trade payables and short-term provisions are given. Moving on to the assets heading, where non-current assets, fixed tangible assets are given. Current assets, in current assets, current investments which are marketable, inventories, trade receivables and cash equivalents are given with their respective amounts. Moving to the notes to accounts part of the question, where reserves and surplus, where in reserves and surplus that is balance in statement of profit and loss is given and general reserve is given. Moving on to the second part, which states as short term provisions, provision for tax is given for both the years. Now let's read out the additional information, which says depreciation charged on tangible fixed assets was rupees 1,20,000 and during the year company paid interest of rupees 36,000 on its long term borrowings. So let Vikas sir explain the solution to the question. So ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो अभी चारवी ने बताया आपको, और 5 मार्क का है ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, वो तीनों एक्टिविटी आपको बनानी है। यहां पर हम देखेंगे स्टार्टिंग से हमेशा फाइनेंसिंग आपको शेयर्स डिबेंचर्स यहीं पे मिल जाएंगे लायबिलिटी साइड पे। तो यहां पर 8 लाख से 12 लाख हो रहा है, ये हमारा फाइनेंसिंग है। रिजर्व सरप्लस जो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, ये वो ऑपरेटिंग में जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारा बढ़ रहा है, ये भी फाइनेंसिंग में प्लस होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसको हम फाइनेंसिंग मानते हैं और यहां भी ये गिर रहा है तो ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा। देन ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे क्या है ये डिटेल में, जैसे यहां पे नोट टू अकाउंट है जनरल रिजर्व का, रिजर्व सरप्लस का, वो भी डिटेल में देखेंगे अभी नीचे। फिक्स एसेट्स यहां बढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट गिवन है डेप्रिसिएशन 1,20,000 की, तो इसको हम एसेट अकाउंट में डालेंगे, तब जाके हम कुछ बैलेंसिंग फिगर देखेंगे क्या आती है। उसके बाद है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी 60 से 84 बढ़ रही है और इसको भी हम क्या मानेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसको हम करंट एसेट्स का लायबिलिटी में नहीं लेंगे, इसको सबसे लास्ट में लेंगे जहां पर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट इन दोनों को एक साथ लेंगे, फाइन, लास्ट में। देन इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है तो माइनस होगा। ट्रेड पेबल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। यहां देखते हैं नेट प्रॉफिट गिवन है रिजर्व सरप्लस में और जनरल रिजर्व, तो नेट प्रॉफिट तो हमें गिवन है 40,000 का, वी विल टेक द 40,000। साथ में यहां रिजर्व बढ़ रहा है 10,000 का, तो 10,000 में ऐड करना है बिकॉज हमारा रिजर्व सरप्लस इसका पार्ट होता है। अब बात करते हैं दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें 2 गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर द प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पर हम ये मान के चलते हैं जितना लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था सारा पे कर दिया, तो इस बार पेमेंट हमारी हुई है 60,000 की, और जो करंट ईयर में हमने प्रोविजन बनाया है वो एसओपीएल से निकला होगा, प्रोविजन मेड था वो हमारा ऐड हो जाएगा यहां पर 84,000। तो जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे वहां पर 40,000 प्लस 10 प्लस 84 ऐड करेंगे, और जब कैश जनरेटेड आएगा वहां माइनस जब टैक्स पेड करते हैं वहां 60 माइनस पे करेंगे, फाइन। और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ये 2 जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और फाइनेंसिंग में माइनस। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो यहां हम देख सकते हैं 1,34,000 हमारा आया था नेट प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व प्लस करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करके। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे थे इसलिए
ऐड कर दिया, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रही थी इसलिए माइनस कर दिया, हमारा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,20,000, माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड वो है 60,000, तो नेट आंसर हमारा आ गया 60। ये रहेगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलिए देखते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सो नाउ अब देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, यहाँ परचेज ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट से 4,20,000, ये सीधा नहीं आएगा, अकाउंट बना के आएगा, वो सबसे नीचे भी आपको दिखाएंगे। अब फाइनेंसिंग में शेयर्स आपको बताया था, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी इंक्रीज हो रही थी और इंटरेस्ट जो पे किया वो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो होगा और बैंक ओवरड्राफ्ट जो रीपे किए कम हो रहा था वो भी माइनस होगा। ये करके हमारा आ रहा है फाइनेंसिंग 4,39,000 प्लस में, तो इन्वेस्टिंग हमारा 4,20,000 माइनस में आ गया। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके A प्लस B प्लस C हमारा आ रहा है 3,65,000। इसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो दो हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000। और अब देखते हैं क्या हमारा क्लोजिंग आंसर आ रहा है। यस, टोटल आ रहा है मार्केटेबल और कैश के इक्विवेलेंट के बराबर, और ये हमने आंसर लिख दिया लास्ट में। तो ये हमारा आंसर टैली हो गया एंड में, और इसी तरह से आपने पूरा का पूरा दिखाना है। आप जाते जाते बस एक लास्ट वो देख लीजिए, अकाउंट, ये हमारा टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग डेप्रिसिएशन बाय में, और ये टू बैंक 4,20,000 हमने शो कर दिया एज अ इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये आपको एफर्ट अच्छा लगा। पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपने जो कर लिया था, नहीं भी किया तो मेरे साथ कर लिया, अपनी मिस्टेक आपने नोट कर ली। सो थैंक्स करेंगे चार्वी को जिसने मेरे साथ हेल्प किया, ताकि कम टाइम में और बहुत ही अलग फ्लेवर के साथ हम आप तक ये तैयारी कराएं। तो कैसा लग रहा है बताइए, जल्दी से शेयर कीजिएगा हमें, और ऐसे आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेपर्स हम लेके आ रहे हैं। इन सभी पेपर्स का इस तरह का वीडियो सॉल्यूशन आप पहली बार देख रहे हैं, यानी आपको बार बार अपनी गलती मिल जाएगी इन वीडियोस को देखने के बाद। यस और नो, जल्दी से अगले पेपर की तैयारी कर लीजिए। जो मिस्टेक है उस मिस्टेक से सीखिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं मिस्टेक्स व्हेन हैपन दे आर क्वाइट एम्बैरेसिंग, बट व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इट बिकम्स एक्सपीरियंस। सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और पेपर एनालिसिस के साथ बहुत जल्दी। तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। So wonderful explanation, sir, and I hope you got an idea how to attempt the paper in your board exam, and for that the confidence and speed both have to be maintained, for which Vikas sir is going to help you in the following videos as well. For any doubts and queries, you know who to contact, and see you in the next video. Thank you.